रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तू विधेयात्मा आत्मवश्यैः रागद्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम अधिगच्छति। किंतु अंतःकरण को निज अधीन रे रखिथिबा साधक निजर बस करा जाइथिबा रागद्वेष रहित इंद्रिय मानक द्वारा विषय मानकरे विचरण करी मध्य प्रसाद अर्थात अंतःकरणर प्रसन्नता को प्राप्त होइथांती। सृष्टि रे दुई श्रेणीर व्यक्ति, गोटे श्रेणीर व्यक्ति जहांकर वर्णना भगवत गीता रे पूर्ववर्ती दुई श्लोक रे भगवान आलोचना कले। ध्यायतः विषयान् पुंसः, विषय को ध्यान करुथिबा लोक एवं तार कौन हुए से विषय मध्य भगवान आलोचना करने किमिति कामरु क्रोध, क्रोधरु बुद्धिभ्रंश, बुद्धिनाश इत्यादि ताको कहि सारा पर ठीक भगवान एठी कहउछंती संसार पर एभली लोक अछंती जो लोक जो व्यक्ति विषय मान को नहीं तांकरी भितर रहुथिले मध्य से विक्षिप्त, उत्क्षिप्त, प्रक्षिप्त हुअंती नहीं, से प्रसाद बुद्धि रखी जीवन यापन करती। एठी एई विषय को आलोचना कला बेले गतकाली आम आलोचना करिछे पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एमाने ए जन्मर नुहंती। एमाने सूक्ष्म शरीर रे पूर्व जन्म मानकर संस्कार संग्रह करी करी आसी ए जन्म को आसचंती। एवं ए जन्म रे छोट शिशु किंतु पूर्व जन्मर संस्कार नहीं तार स्वभाव आचरण मध्य भिन्न हुए। व्यक्तिर पूर्वजन्म संस्कार सी व्यक्ति जीवन को नियंत्रण करिवो ना वर्तमान जीवन प्रचेष्टा, वर्तमान जीवन साधना ताको अतिक्रम करी आगो को नहीं पारिबो। ये होछि गोटे प्रश्न। अर्थात पूर्वजन्मर संस्कार जहाँ को आम प्रारब्ध बोली कहूँ से प्रारब्ध बलवान ना ये जन्म रे जो प्रचेष्टा ये जन्मर साधना ये बलवान। यही श्लोक रे भगवान कहउछंती से व्यक्ति प्रसाद लाभ करिवो। गतकाली हम प्रसाद विषय आलोचना करथिले। जो व्यक्ति विधेयात्मा अर्थात गतकाली आलोचना करथिले विधेय शब्दर अर्थ होछि विधि पूर्वक, नियम पूर्वक। आत्मा शब्दर अर्थ आत्मा नुहे, एठी आत्मा शब्दर अर्थ होछि निजर अंतःकरण। एठी तो आत्मा शब्द दुई थर श्लोक रे प्रयोग कराई छी। विधेयात्मा आत्मवश्यैहि तत् निजर अंतःकरण। एठी बहिकरण गतकाली कहिथिले आमर करण शब्दर अर्थ होछि जंत्र, साधन,
ବା ଉପକରଣ। ଆଖି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କରଣ। ଗତକାଲି ଆମେ କହିଥିଲେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଖିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁ, ଆଖି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତା। ଚଷମା ଲଗାଉଛୁ, ଆଖି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖୁ। ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ବୟସ ହେଲେ ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ବୟସ ହେଲେ କାନକୁ ଶୁଭିବନି, ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି? ଇଏ ତ ଏତିକି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା, ତାକୁ ଆହୁରି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲା ବହିଃକରଣ। ଯନ୍ତ୍ରର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସାଧନ ଆଖି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବି? କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କୋଉ କଥା ଶୁଣିବି? ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି? ଇଏ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ବାହାରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରର ପଛପଟରେ ଥିବା, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ଚାରୋଟି। ତାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଥିବା, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଖି ମୋର ଟିକେ ଖରାପ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବି। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଭାଷାରେ ଆଖି ସିନା ଯନ୍ତ୍ର, ଆଖିକୁ ଦେଖାଉଥିବା ଶକ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଇକୋଲୋଜି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। କେବ କାହିଁକି? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଦେଶରେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠିକି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିବା ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦଲାଇ ଲାମାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତା ପର ବର୍ଷ ଆମକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କହିଲେ ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ମନ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଖିବେ। ମନ ତ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମନ ଆମର ଅଛି, ମନ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ମନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୋ ମନ ଆଜି ଚଞ୍ଚଳ, ମୋ ମନ ଆଜି ଶାନ୍ତ, ମୋ ମନ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ, ଏକଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମନ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମନ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ, ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନଟି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମନ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପିଲାଦିନଠୁ ଆମେ କେହି ଶିଖେଇଲେ ନାହିଁ। ଏ ମନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଛି। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ, ଏ ଚାରି। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଭାଷା, ମନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହ। ଗୋଟିଏ ଗିଲାସରେ ଥିବା ପାଣି ନଦୀ ନୁହେଁ।
कଳରେ झरुथिबा पानी सी मध्य नदी नुह। नदी होची एक जलधारा जार गोटे प्राकृतिक उत्स अच्छी। प्राकृतिक उत्स ये कृत्रिम नुह। गिलास भीतर रखिथिबा पानी नदी रे थिबा पानी तत्व दृष्टि तो सब पानी कଳରେ झरुची पानी पानीर प्रवाह जल प्रवाह ताहा किंतु नदी नुहे। गोटे प्राकृतिक उत्स कृत्रिम उत्स नुह। प्राकृतिक उत्सरु प्राकृतिक गतिपथ दे बही जाउथिबा जलधारा हुए तो से सागर संगे मिलन हो किंबा अनेक जगह ह्रदरे मध्य नदी मिसी जाती तार गोटे संगम स्थान अच्छी ये हूँ नदी। से भली वृत्तिर प्रवाह तार प्राकृतिक उत्स हूँ चित्त। चित्तरु वृत्तिर धारा बही चली। ये चित्त हूँ कौन ना स्मृतिर गंताघर स्मरणात्मिका वृत्ति चित्त स्मृतिर गंताघर आम सूक्ष्म शरीर रे जन्म जन्मांतर संस्कार स्मृति लुचि रही। से स्मृति भितर कौन सी गोटे स्मृति जागृत होई गोटे वृत्ति भाव में आम पाख चली आसला। से गोटे वृत्ति खाली स्थिर ही रहिला नहीं ता पछकु ता पछकु ता पछकु ता पछकु वृत्तिर स्रोत चलुची। मन हूँ चिंतार स्रोत। बुद्धि हूँ कौन बुद्धि हूँ पुणी मनर आउ गोटे परिभाषा हूँ मन हूँ संशयात्मिका। मन ठीक करि पारेनी कौन करी जीवी जीविनी रही रही खाइबी खाइबिनी। ये मन विभिन्न प्रकार बाट देखईदेव किंतु कौ बाटे जीवी मन ताको कहब ना। बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पत्ति दे जाए। मनर मालिक है बुद्धि। देखंतु आमर ओडिया भाषा आम कह मनोवृत्ति खराब मन संगे वृत्ति लगाऊँ बुद्धि वृत्ति तार बुद्धि हूँ निष्पत्ति नब किंतु ए बुद्धि किभली बुद्धि आम मनकर मन गोटे उपकरण मन हूँ गोटे करण बुद्धि हूँ गोटे करण जंत्र। अहंकार अहम कर्ता इति भाव मु करछि एई भली जो भावना ये अहंकार। चित्त तो आलोचना करने ये चारोटी अंतःकरण आपण कहतु भगवान आखि देइछंती आम भल पाई ना नहीं आमको भगवान से भली मन देइछंती भल पाई के नहीं। बार बार सबुठी प्रश्न आसछि मन चंचल गतकाली कहली मन चंचल भल। अर्जुनकर मन चंचल अर्जुन पचार चंचल ही मन कृष्ण मन ही चंचल। जदि मनर चंचलता न रही से मन नुह। अग्निर दाहिका शक्ति जदि न रही अग्नि अग्नि नुहे। मनर चांचल्य जदि न रही मन भी नुह। से अमन से मन न मन न मन रही गोटे भाव में बुड़ीगला मन से मन ना। आपण कहतु ये चारोटी हेले करण बा जंत्र बा साधन। जदि ये चारोटी हेले जंत्र जंत्र भल ना खराब कहे आज्ञा जदि भगवान जंत्र देइछंती बजेबा पाई जंत्र देइछंती व्यवहार करिबा पाई जंत्र जेमती व्यवहार करिबा। एई उदाहरण साधु सन्थक मुखर शुणिथिबा उदाहरण जंत्र होछि गोटे छुरी। छुरीटी भल कि खराब छुरी माँ हाथ रही परिवा के बनइब रोषे कर। डाक्तर हाथ रही डाक्तर अस्त्रोपचार करेंगे शल्य चिकित्सा आउ जो चगला लोक हाथ रही देखेब। तेणु करणर किसी दोष ना व्यवहार करुवा व्यक्ति ता ऊपर निर्भर करे।
तेणु मन बुद्धि अहंकार चित्त एमाने कहीं भूल नुहति। अहंकार के भूल नुहे। शुणु आपन कहे उल्टा पल्टा कथा कहते अहंकार केमती भूल नुहे। देखु अनेक समय आम कहू अहंकार को बढ़ई बढ़ई चल बढ़ई केते बाट जीव ना अहंकार को बढ़ई अनंत कर दियो। अनंत अहंकार जो माने गणित शास्त्र पढ़ी थे गणित शास्त्र गोटे लिमिट एंड कंटिन्यूटी द लिमिट 0 to infinity इंटीग्रेशन कला बेले लिखती 0 to infinity। ता अर्थ होची निजर अहंकार को कमे कमे के सुनु को जा बढ़ई बढ़ई अनंत को जा। कमे कमे सुनु को गले मु किछि नुह सब ठाकुर। बढ़ई बढ़े अनंत को जाओ अहम ब्रह्मास्मि मु होची ताठू बड़ी अहंकार का बड़ ना भवनाथ मु ब्रह्म। आ ये अहंकार शुणु ये अहंकार शुद्ध अहंकार। तेणु ये अहंकार अहंकार नुह। ठाकुर श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहले पाका आमी कांचा आमी। पाचिला अहंकार कंचा अहंकार। पाचिला अहंकार किसी दोष ना कंचा अहंकार तो सब दोष हो अड़ुआ। ये चारोटी हूँ अंतःकरण। भगवान कहले विधेय आत्मा। ये जो विधेय आत्मा ये विधेय आत्मा जे अंतःकरण को निज बसरे रखिपार से केमिति मु गोटे मोर निज जीवन को नियंत्रण करने विधि पूर्वक मो जीवन को नियंत्रण करी। आउ जे नियंत्रण करू 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 तार मन बुद्धि अहंकार चित्त सी नियंत्रित हो गले। वर्तमान नियंत्रित कर कौशल कौन आमे जानी जाइछु अनेक कथा प्रवचन शुणुचु आलोचना शुणुचु आजिकल ग्रंथ मध्य सहजरे मिलुचंती आमे स्वाध्याय करूचु जानिछु कथा हजारे किंतु गोटे कथा हम अभ्यास करूचु कि कही दौ थाई पर को बुद्धि न आसे घर को कही दबा पाई मु अनेक कथा संग्रह करिछि किंतु मु निजको बुझिया पाई जदि मु एकुटिया निजे बसी निरपेक्ष भाव में मोर मन को चाहिए मोर निज भीतर को चाहिए मोर मन मोर बुद्धि मोर अहंकार मोर चित्त मोर इंद्रिय वर्ग से माने मो बसरे ना मु तांक बसरे केमिति बस को नबो एठी साधना विधेय आत्मा। विधेय आत्मा गतकाली आलोचना करथिले जे देह भितर 7टी चक्र अछंती 7टी चक्र रु 2टी चक्र मस्तिष्क मध्य अछंती 5टी चक्र देह भितर अछंती मेरुदंड भितर 5टी चक्र मेरुदंड मध्य अछंती। ये पंच चक्र मध्य 10 इंद्रिय अछंती 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय अछंती। गतकाली आम आलोचना कर देइछे पुणी थरे टिके मन पकई देबा पई मूलाधार चक्र रे घ्राणेन्द्रिय एवं पायु स्वाधिष्ठान चक्र रे रसनेन्द्रिय एवं उपस्थ नाभि चक्र रे दर्शनेन्द्रिय एवं पद हृदय चक्र रे स्पर्श इंद्रिय एवं पाणी हस्त विशुद्ध चक्र रे श्रवणेन्द्रिय एवं वाक् ये 10 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त सी पुणी भितर अछंती कोठी अछंती देखंतु मन बुद्धि अहंकार चित्तंकर क्रीड़ा भूमि होची हृदय सेमानकर बीज भूमि संस्कार स्थिति भूमि होची मस्तिष्क भितर स्थूल दृष्टि आम कहीदेलु मस्तिष्क हृदय सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप से रोचंती मस्तिष्क चित्त अर्थात स्मरणात्मक वृत्ति
सी हूँ मूल से स्मृति अहंकार बुद्धि मन आपण सीधा सड़क प्रश्न पचारे एम नियंत्रण करेंगे केमिति नियंत्रण हम केमिति प्रश्न आसाला गतकाली मन चंचल मन को नियंत्रण करू केमिति बुद्धि को स्थिर करू केमिति बुद्धिर प्रखरता बढ़िब किभली स्मृति अहंकार शुद्ध हम किपरि स्मृति स्मृति किभली आपण देखंतु भगवत गीतार अर्जुन स्वीकारोक्ति भगवत गीतार अंतिम पर्याय को नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा मोर स्मृति लाभ है कौ स्मृति देखंतु आम साधारण पिला को कही दउछु पाठ पढ़ मन रख आज गोटे पिला को पचारि मुझे तोर मन अच्छी तू गणित पढ़ी ना हाँ से मत पचारा कहला आम गोटे परिवार जन्म होइछु बापा माँ भाई इठी कौन किसी कर्मर संपर्क रहुची मुझे शुण तू गणित पढ़ी ना हाँ सेट थियोरी पढ़ीचु से मोर मन ना मुझे कि पाठ पढ़ु आज्ञा जति जहाँ पढ़िलु ताको भूलीगलु से पाठ नुह तार अर्थ से पाठ पढ़ पाठ जदि निज जीवन में काम न लगे सी मत पाठ न प्रथम श्रेणी रे जो अ आ शिखी थिले ये हूँ मोर गुरुदेव बाणी से अ आ आज पर्यंत आम व्यवहार करुचु मुझे लिखी जनकर ना लिखली टी के पंडा मु लिखिली प हर्षईकार पी बिंदुटीए देली कहवा तात्पर्य होची जो अक्षर मो पिलादिन शिखीदेली शिशु श्रेणी प्रथम श्रेणी आज पर्यंत मध्य से अक्षर अभ्यास मोर चली पिलादिन पा पा बा जो शब्द मत माँ शिखे से बाणीर व्यवहार आज पर्यंत मु चली सी तो भूली हम ना देखंतु से जो प्रश्न पचार आम गोटे घर स्वामी स्त्री स्वामी गोटे वृत्त स्वामीर कर्म स्त्री तार जीवन कर्म हो गोटे वृत्त से वृत्त को जदि परस्पर को छेद कर दउची ये जो छेद कर दउची जेतिकी ये हूँ उभयंकर समान कर्म से समान कर्म पाई समान कामना से समान कर्म समान कामना पाई स्वामी स्त्री भाव में एकाठी होती संतान भाव में एकाठी होते से समान कर्म टी क्षय हो पुणी से एपट सेपट किए आग जीव सेपटे किए पछ जीव एपट सेपट जीवाक पड़ो जन्म जन्मांतर संस्कार नहीं आसीचु एबे कौन साधना कले विधेय आत्मा किमिति मोर मन बुद्धि अहंकार चित्त मन बुद्धि अहंकार चित्त नियंत्रण रहिले इंद्रिय मान रही इंद्रिय मान किसी भूल नहीं आग हूँ मन मन को केमिति मोर गुरुदेव कहले कहले मन मनर मालिक किए गुरुदेव कहते मनर मालिक हूँ पवन कौन गुरुदेव कहते पवन मनर मालिक किए से मन नाथस्तु मारुत टिके व्याख्या करवा मारुत कहले कौन मनर मालिक गुरुदेव कहले श्वास चंचल मन चंचल जिते आमर मन चंचल आमर श्वासर गति चंचल काम समय रे क्रोध समय रे भय समय रे विषाद समय रे श्वासर गति चंचल मन स्थिर श्वास स्थिर गतकाली प्रश्न पचारे मन को केमती नियंत्रण करी शुण आहार शुद्ध
सत्व शुद्धि आहार शुद्धि नहेले चित्त शुद्धि हब नाही, मन शुद्धि हब नाही। आहार जेमिति अन्न सेमिति मन। आपण मन को बस करिया चाहूछंतु ताहले गोटे नियम तैयारी करंतु आ नियम को पालन करिवा पई संकल्पबद्ध हुंतु। जदि संकल्पबद्ध न हबो ताहले हब नाही। तु विधे आत्मा आत्मवश्यैहि निजर बस करा जाई थिबा निज बसरे प्रथम कहले विधि नियम पूर्वक पालन कर आ निज मन को निज बसरे रख। मन को हाथी संगे तुलना कराई, मन को हाथी संगे तुलना कराई। अपने हाथी को हाथी माताल हाथी। हाथी होची को हाथी मन मत्त गजेन्द्राना, मन होची पागला हाथी। हाथी मद खाए, हाथी जदि कि मद खुआई दब पुणी कहते हाथी की मद खुआई दब आउ माता से कौन न कर पागला हाथी मद खाई। ये मन हूँ सेमिति। मन को किभली बसरे रखिबी, मन को किभली नियंत्रण रखिबी, बुद्धि को किभली बसरे रखिबी, बुद्धि को किभली नियंत्रण रखिबी। देखंतु प्रत्येक व्यक्तिर मन एठू तल आड़े ऊपर को जीवा कथा हमें जानी ना। मोर गुरुदेव कहती जे ए तल आड़ को जार मन जाऊची, ए तल आड़ को जार मन जाऊची भगवत गीतार श्लोक अधो जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति। देखंतु ये होची ए श्लोकर एठी अर्थ गीता तत्व। मझरे किए रहती मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ऊपर किए जाती ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। आमको आम गति करुचु, आम मन एठी रहइबो न एठी रह कोठी रोटे रहइबो। मन जदि एठी रहउची मन रे की वृत्ति आसीबो सुनंतु। मन जदि एठी रहउची मन रे की वृत्ति आसीबो धन संपत्ति। मन यदि एठी रहउची, मन यदि एठी रहिबो काम जौन संभोग। मन यदि एठी रहिबो खाद्य पानीय। मन यदि एठी रहिबो दंभ दर्प अहंकार अस्मिता। मन यदि एठी रहिबो एठी उभय दंभ दर्प अहंकार अस्मिता स्नेह प्रेम दया विनय सेवा परोपकार। मन यदि एठी रहिबो बौद्धिक विकास धार्मिक चेतना पूजा पाठ मंत्र जप स्वाध्याय सत्संग। एठी मन जदि एठी के आसीबो एठी होची कंठचक्र श्रवण आम आलोचना करछे। एठी के आसिले मनन, ऊपर को गले निदिध्यासन, एठी के आसिले एकाग्रता, एठी के आसिले ध्यान समाधि। ऊर्ध्वं गच्छन् बचिगला। एठी राजसिक व्यक्ति हृदय चक्र रहंती, तामसिक व्यक्ति धन संपत्ति जौन संभोग खाद्य पानीय नहीं रहंती, सात्विक लोक ऊपर को जाती। आमे कोठी रहिबा को चाहछु? आम मन को ऊर्ध्वमुखी करिया को चाहो ना आम मन को अधमुखी करिया को चाहो? ऊर्ध्वमुखी देखंतु भगवान सृष्टि करछन्ति गोटे फूल आ से फूल ना सबुठी गोटिए शब्द। आपण कहिबे मंदार फूल। मंदार फूल ना होची इंग्रजी हाइबिस्कस। हाइबिस्कस काहेकि ता ना हैला एठी मंदार तार किसी तुलना नाही, किंतु गोटिए फूल ओडिया भाषा रे जहा
इंग्राजी भाषा से सूर्यमुखी, इंग्राजी रे सनफ्लावर, सूर्यमुखी सनफ्लावर। सूर्य जो पटे जाऊँगी सी मुह को सेपटे सेपटे ढलाऊँगी। ये हूँ सूर्यमुखी फूल। कथा तात्पर्य हूँ आम मानकर मन चेतना अधमुखी हम ना ऊर्ध्वमुखी हम। आम मानकर मन चेतना विषयमुखी हम ना गुरुमुखी हम। आम मानकर मन चेतना एठी रहिबो कि ऊपर को जीव, ये हूँ निज ऊपर निर्भर करछि मु कौन चाहे। गतकाली आलोचना प्रसंग रे आमे कहिथिले जे जीवन जदि लक्ष्य ठीक हैनी मन चंचल होता भल। लक्ष्य जदि स्थिर हो गला ये हूँ मो जीवन लक्ष्य मुख्य लक्ष्य ताल से बेले देखिलु मोर मन चंचल, मन मोर सहयोग करूनी, मन केमती स्थिर कर। आम जीवन लक्ष्य आम स्थिर करनेलु कि प्रवचन केवल मनोरंजन नुहे, कहानी नुहे, क्षणिक तात्कालिक चित्त विनोदन नुह। ये हूँ आम जीवन अंतर्मुखी चेतना को उज्जीवित करने, आमर अंतर्मुखी चेतना को ज्ञानाग्नि रे प्रज्वलित करने। आम समस्त भीतर शक्ति अच्छी।